In the last lecture, we have discussed about the vapor-dominated system. Now, in today's lecture, we are going to discuss liquid-dominated binary cycle or double flash system. Its efficiency is higher than the single flash system. In this system, two steam separators are used. Multi-stage turbine are also used. The working of double flash system is same as the single flash system. In the last lecture we have already discussed about the single flash system. So there is a minutely difference between the single flash system and double flash system. In double flash system, its efficiency is higher than the single flash system. In this system, two steam separators are used. सिंगल फ्लैश सिस्टम में हम सिंगल सेपरेटर यूज़ करते थे. डबल फ्लैश सिस्टम में डबल दो स्टीम सेपरेटर का उपयोग होगा. मल्टी स्टेजेस टर्बाइंस और ऑल्सो यूज्ड, और इसमें जो टर्बाइंस होंगी वो मल्टी स्टेजेस टर्बाइन यूज़ की जाएंगी. द वर्किंग ऑफ डबल फ्लैश सिस्टम इज सेम एज सिंगल फेज सिस्टम. तो सिंगल फेज सिस्टम और मल्टी फेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है? इसमें मल्टीपल टर्बाइन यूज़ होंगी और डबल स्टीम सेपरेटर का उपयोग होगा. उस वजह से इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है. द वर्किंग ऑफ डबल फ्लैश सिस्टम जो है ऑलमोस्ट सेम होता है जैसा कि सिंगल फ्लैश सिस्टम में होता है. और द सेकेंड सेपरेटर इज लो प्रेशर सेपरेटर. द जियोथर्मल फ्लूइड flash to a low pressure steam and admitted to the low pressure steam turbine. Hot brine from underground reservoir circulated through a heat exchanger and is pumped back to the ground. In heat exchanger, hot brine transfer जो गर्म पानी हमें इम्प्योरिटी के साथ जो नीचे से मिलता है उसको बोलते हैं हॉट ब्राइन. जो धरती के नीचे से हमें मिलता है उसको बोलते हैं हॉट ब्राइन. तो द हॉट ब्राइन फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर सर्कुलेट्स थ्रू अ हीट एक्सचेंजर एंड इज पम्प बैक टू द ग्राउंड. हीट एक्सचेंजर पर सर्कुलेट होता है और वापस उसको पानी उसमें डाल देते हैं. इसका काम होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. तो हीट एक्सचेंजर हॉट ब्राइन ट्रांसफ़र इट्स हीट टू द ऑर्गेनिक फ्लूइड. इसमें जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे उसको जो है हीट देने के लिए हॉट ब्राइन का उपयोग किया जाएगा. ऑर्गेनिक फ्लूइड दस कन्वर्टिंग इट टू द सुपर हीटेड वेपर दैट इज़ यूज्ड इन स्टैंडर्ड क्लोज रैंकिन साइकिल. तो रैंकिन साइकिल वही स्टीम जनरेशन के लिए जितना पूरा साइकिल होता है दैट इज़ नोन एज रैंकिन साइकिल. द वेपर ड्राइव्स द टर्बाइन एंड इज कंडेंस्ड इन a surface condenser. The condenser is cooled by water from a natural source or a cooling tower circulation system. ठीक, तो हमने सिंगल सेपरेटर वाला पढ़ा था. इसमें डबल सेपरेटर होगा. ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? वर्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे. वर्किंग फ्लूइड को जो हॉट ब्राइन लेंगे उससे गर्म करके स्टीम जनरेट करेंगे. उस स्टीम को यूज़ करेंगे फिर टरबाइन में, जो कि मल्टीपल टरबाइन इसमें यूज़ होगी. इस वजह से इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है. तो क्या डिफरेंस है डबल फ्लैश सिस्टम और सिंगल फ्लैश सिस्टम में? इन डबल फ्लैश its efficiency is higher than the single flash system because in this system two steam separators are used. Multi-stage turbines are also used. The working of double flash system is almost same as single flash system. The second separator is a low pressure separator. The geothermal fluid flashed to a low pressure steam and admitted to the low pressure steam turbine. Hot brine from underground reservoir circulates through a heat exchanger and is pumped back to the ground. In heat exchanger, hot brine transfer its heat to the organic fluid, thus converting it to superheated vapor that is used in a standard closed Rankine cycle. The vapor drives the turbine and is condensed in a surface condenser. The condenser is cooled by water from a natural source or a cooling tower circulation system.
अब unlike the dry steam of direct flash geothermal technologies, which are most suited for the use of high temperature resources, the binary process does not take steam from the geothermal fluid directly to the turbine. The binary cycle having no problem of corrosion or scaling in the working fluid loop component, that is turbine condenser heat exchanger. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी साइकिल वाले सिस्टम में, डबल फ्लैश सिस्टम में डायरेक्टली जियोथर्मल फ्लूइड का यूज़ नहीं हो रहा है, जबकि सिंगल फ्लैश सिस्टम में हम जियोथर्मल फ्लूइड का यूज़ करते थे एज ए वर्किंग फ्लूइड। यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड केमिकल वर्किंग फ्लूइड लेंगे, जिसको कि हम हॉट ब्राइन से गर्म करके इंटरनल साइकिल के लिए जो फ्लूइड यूज़ करेंगे उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे हॉट ब्राइन यूज़ करके। तो उससे क्या होगा, अंदर का जो हमारा सिस्टम होगा जिसमें कि स्टीम प्रोड्यूस होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारा होता है टरबाइन, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर। तो इसमें इंटरनल फ्लूइड जो वर्किंग फ्लूइड हमारा रहेगा वो हॉट ब्राइन ना रहने की वजह से, चूँकि केमिकल हम यूज़ करेंगे तो उससे उसमें जंग नहीं लगेगा, अंदर का जो सिस्टम मशीनरी है वो ख़राब नहीं होगी। द बाइनरी साइकिल हैविंग नो प्रॉब्लम ऑफ corrosion or scaling in the working fluid loop component like टरबाइन कंडेंसर। अब जब हम सिंगल फ्लैश सिस्टम यूज़ करते थे तो उसमें हम हॉट ब्राइन को चूँकि यूज़ करते थे, तो टरबाइन कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर का जो कम्बिनेशन होता है उसमें जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि वो सलाइन वाटर और चूँकि वो नमक उसमें रहता है तो उससे जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये एक एडवांटेज है डबल फ्लैश सिस्टम का। ऑल्सो देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन जियोथर्मल फ्लूइड एंड वर्किंग फ्लूइड। तो जियोथर्मल फ्लूइड जो हॉट ब्राइन होता है उसमें और वर्किंग फ्लूइड के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। एज द जियोथर्मल फ्लूइड रिटर्न टू द अर्थ, देयरफॉर देयर इज़ नो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक, तो इसमें सिंगल फ्लैश सिस्टम में क्या करते हैं, हम गर्म पानी और स्टीम का जो कम्बिनेशन होता है उसी को यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें जो हॉट ब्राइन हमें नीचे से मिलेगा उसको यूटिलाइज़ हम करेंगे खाली टेम्परेचर देने के लिए। इंटरनल फ्लूइड या जो वर्किंग फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं, नियॉन, फ्रियॉन या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, उसको जो है टेम्परेचर देने के लिए खाली हॉट ब्राइन का यूज़ करेंगे हीट एक्सचेंजर के थ्रू, और फिर वो वापस धरती में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, टेम्परेचर दिया जाएगा जिससे कि वो गैस सुपर हीट का टेम्परेचर बढ़ जाए, और वो टेम्परेचर बढ़ी हुई गैस फिर कंडेंसर में जा कर के ठंडी होकर एक्सपेंड होगी, जिससे कि टरबाइन रोटेट होगी। टरबाइन से क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर जुड़ा रहेगा, और जैसे जैसे वो रोटेट करेगा जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉइल रोटेट होगी, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब वो जो एग्जॉस्ट फिर हो करके वो जो वर्किंग फ्लूइड है जो स्टीम के फॉर्म में है वो एग्जॉस्ट होके कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में उसको कंडेंस करेंगे, कूलिंग टावर होते हैं उसमें, वो कूलिंग टावर से कनेक्टेड रहेगा जिससे कि ठंडा पानी आता रहेगा, उसके टच में आके वो एग्जॉस्टेड स्टीम ठंडी होकर के वापस लिक्विफाई हो जाएगी, और लिक्विफाई होके फिर वो हीट एक्सचेंजर में जाएगी जहाँ पे फिर हॉट ब्राइन आएगा, और हॉट ब्राइन से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर वो गैसेस फॉर्म में आकर के इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। अब इसका मेजर एडवांटेज ये है कि चूँकि इसमें हम हॉट ब्राइन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटरनल वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो टरबाइन है, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर है उसमें इंटरनली वर्किंग फ्लूइड यूज़ होगा, हॉट ब्राइन नहीं यूज़ होगा, तो उसमें जंग लगने की संभावना ना के बराबर रहेगी। और साथ ही साथ हॉट ब्राइन और वर्किंग फ्लूइड एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड का अंदर रहता है और हॉट ब्राइन बाहर से आके टेम्परेचर दे करके हीट एक्सचेंजर को वापस वो धरती के अंदर चला जाता है। ठीक, तो ऑल्सो देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन जियोथर्मल फ्लूइड एंड वर्किंग फ्लूइड, एज द जियोथर्मल फ्लूइड return to the earth, therefore there is no environmental problem. Now the merits and demerits of geothermal power generation। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे सबका एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा, एप्लीकेशंस होगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज मीन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो क्या मेरिट्स हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी। तो इसके एडवांटेज हैं, इसके मेरिट्स हैं
Geothermal energy is inexhaustive, available all the year around, cheaper in cost compared to the energies obtained from other sources. It does not involve any combustion of any fuel. It produces minimum pollution. So geothermal energy is a रिन्यूएबल एनर्जी, यू कैन से इट इज़ इनएग्जॉस्टिव, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। अवेलेबल ऑल द ईयर अराउंड, ये पूरे इस वर्ष अवेलेबल है हमको, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है अगर इसको कंपेयर करें जो एनर्जी हम अदर रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं। तो इन कंपैरिजन विद अदर रिसोर्सेज इट इज़ वेरी चीप। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी कम्बशन, इसमें किसी भी तरीके का कम्बशन नहीं होता है क्योंकि हम कोई भी फ्यूल इसमें यूज़ नहीं करते हैं, और जियोथर्मल एनर्जी से बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर ही पोल्यूशन होता है। तो दीज ऑल आर द मेरिट्स ऑफ यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी। नाउ द डीमेरिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी फॉर द पावर जनरेशन। Because of the relatively poor seam condition at most sites, a geothermal power plant usually pump over 3 times more thermal energy into the environment for each unit of electricity produced than does a conventional fossil power plant। होता क्या है कि हर जगहों पर सीम कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से जियोथर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो लगभग 3 गुना ज़्यादा थर्मल एनर्जी इन्वायरमेंट में पंप करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कि अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करके पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी तुलना में लगभग 3 गुना जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो थर्मल एनर्जी को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर सीम कंडीशन इन द मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर वी ट्राई फॉर द जियोथर्मल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन, इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे बड़ा डीमेरिट क्या हुआ? पुअर सीम कंडीशन की वजह से मैक्सिमम जगहों पर जियोथर्मल पावर प्लांट से जो है थर्मल एनर्जी हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में लगभग 3 गुना ज़्यादा पंप करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें कि अगर फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट में जब हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो जितना थर्मल एनर्जी हम इन्वायरमेंट में पंप करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा जो है पंप होती है जब हम जियोथर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं, और इसको कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। तो ये सबसे मेजर डीमेरिट्स है, सबसे मेजर डिसएडवांटेज है फॉर ऑफ जियोथर्मल पावर। टोटल फ्लो जियोथर्मल पावर यूनिट, एक ये और दिया हुआ है टोटल जियोथर्मल, एक पावर प्लांट और दिया हुआ है टोटल फ्लो जियोथर्मल पावर यूनिट। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि सारे पावर प्लांट हम जियोथर्मल के पढ़ रहे हैं तो इसकी भी जानकारी हमको ज़रूरी है। तो इन टोटल फ्लो जियोथर्मल पावर यूनिट, both kinetic and heat energy of steam liquid mixture produced by flashing the geothermal brine is used. The geothermal brine is passed through a special turbine where it expands and drive the turbine with the coupled with the generator। तो जियोथर्मल पावर यूनिट में क्या करते हैं, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी जो हमें मिलती है स्टीम और लिक्विड मिक्सचर, जैसे मैंने बताया ना कई जगहों पे आपको स्टीम और लिक्विड मिक्सचर के रूप में मिलता है। तो जो हमें काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है ऑफ स्टीम लिक्विड मिक्सचर प्रोड्यूस बाय फ्लैशिंग द जियोथर्मल ब्राइन। तो जियोथर्मल ब्राइन मिलता है हमको स्टीम और लिक्विड का मिक्सचर, उसके दोनों काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। द जियोथर्मल ब्राइन इज पास थ्रू स्पेशल टर्बाइन
where it expands and drive the turbine which is coupled with the generator, जहाँ पर जो है इस ब्राइन को प्रोडक्शन वेल से निकालते हैं और टरबाइन में भेजते हैं, जहाँ पर ये एक्सपेंड होती है और जनरेटर इससे कनेक्टेड रहता है टरबाइन से। द जियोथर्मल फ्लूइड फ्रॉम द टरबाइन इज डिस्चार्ज टू कंडेंसर। द कंडेंस फ्लूइड re-injected into the ground by rejection well। तो जो जियोथर्मल फ्लूइड होता है वो टरबाइन से डिस्चार्ज होता है, तो फिर उसको पंप करके ठंडा कर, टरबाइन से जब डिस्चार्ज होता है तो उसको कंडेंसर में ठंडा करते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, टरबाइन से जितना भी एग्जॉस्टेड ब्राइन है वो आ गया कंडेंसर में, और कंडेंसर जो है हमारा कूलिंग टावर से कनेक्टेड है, तो फिर वो क्या आएगा, कंडेंस करके उसको ठंडा कर देगा। तो कंडेंस फ्लूइड जो होगा वो फिर री इंजेक्टेड कर देंगे ग्राउंड में री इंजेक्शन वेल के द्वारा। ये डायग्राम में एकदम क्लियर बना हुआ है। तो वन मोर थिंग इज, मोर टाइप ऑफ प्लांट इज टोटल फ्लो जियोथर्मल पावर यूनिट। इसमें स्टीम लिक्विड मिक्सचर जो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्शन वेल से, उसको ब्राइन को डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे। नाउ इन द लास्ट, द एप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। The main applications of geothermal energy are, the first one is generation of electric power, जो कि हमने पढ़ा इसी पर्पज़ से इस चीज़ को कि पहला जो एप्लीकेशन है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट। थर्ड वन इज स्पेस हीटिंग फॉर बिल्डिंग कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, ऑफिशियल बिल्डिंग हो, उसमें स्पेस हीटिंग के लिए भी हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी, समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ होता है। पांचवा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग है, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। सिक्स, क्रॉप ड्राइंग, फसलों को सुखाने के लिए भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ होता है। फिश ड्राइंग एंड फिश मील प्रोडक्शन, जहाँ पे मछली पालन होता है तो वहाँ पे मछली सुखाने के लिए और मछली से रिलेटेड बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो बनते हैं उसके लिए भी हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ड्राइड मिल्क प्रोडक्शन, सूखा दूध को सुखा करके जो पैकेजिंग होती है, तो ड्राइड मिल्क प्रोडक्शन में भी जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ होता है। मशरूम फार्मिंग, मशरूम की खेती के लिए भी जियोथर्मल एनर्जी यूज़ किया जाता है। 10th इज़ गैसिफिकेशन ऑफ कोल, कोयले से गैस का फॉर्मेशन करने के लिए भी जियोथर्मल एनर्जी यूज़ की जाती है। 11th एप्लीकेशन इज़ फूड प्रोसेसिंग। तो आजकल के टाइम में बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करती हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जियोथर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। 13 इज सीवेज हीट ट्रीटमेंट, सीवेज हीट ट्रीटमेंट के लिए भी जियोथर्मल एनर्जी। एंड लास्ट इज़ टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी जियोथर्मल एनर्जी का आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है। लोग पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जापान हैज़ 4000 हॉट स्प्रिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़ दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट एवरी ईयर। तो क्या होता है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि ठंड के टाइम में लोग जाते हैं जहाँ पर कि इस तरह की स्ट्रीम मिल रही है कि वहाँ से स्टीम आता है और गर्म पानी मिलता है। तो चूँकि नेचुरल गर्म पानी होता है तो बहुत से लोग ऐसी जगह पर जाकर पार्क वगैरह बना दिए गए हैं जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं और वो गर्म पानी से नहाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड होती है, जहाँ पे स्टीम बाथ भी ले सकते हैं और हॉट वाटर से भी बाथ ले सकते हैं। तो वो गर्म पानी और स्टीम दोनों अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज़ करके लोग स्टीम बाथ या हॉट वाटर से बाथ लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ हो रहा है। उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जापान हैज़ 4000 हॉट स्प्रिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़ दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट एवरी ईयर।
Now we have only two topics in this unit, the tidal energy and the wind energy. In the next lecture, we will start with the energy. It will take, I think, 2 to 3 lectures to cover the tidal energy, and after that, we will discuss wind energy in 2 to 3 lectures.